हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा वीकली करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर और फोर्थ वीक ऑफ नवंबर। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download using the Play Store, and it is available only for the Android users as of now. Once you have downloaded and opened the app, you will see a page such as the second screen here. Then you just need to log in with your Google ID, or you can say with your Gmail ID on this application, and once you have logged in, you are ready to use the particular application. As you can see, you will be seeing here my course, all courses, crack current affairs. Just click on any of those and you will be directed to a second page. Here now, what are the features or why we recommend you to use the app? Because on the app we provide you daily current affairs both in English as well as in Hindi. Both Hindi and English current affairs are provided you daily along with the quiz sessions. This is important. We provide you daily with the quiz sessions that will help you to brush up your current affairs that you gain today through our video or any other notes provided. These English and Hindi PDFs are also provided to you daily. This is provided on our app course that you can go and purchase. Two types of courses are there, 1 year plan and a second year plan, which you can opt as per your need. Then we provide you with weekly videos. Not just weekly videos on YouTube and monthly videos, daily videos are also given. Apart from that, weekly PDFs of current affairs are provided to you. Compiled PDF of current affairs of the whole week will be provided to you both in English as well as in Hindi. Then similarly for the month also, you will be provided a compiled video of the whole month both in English as well as in Hindi PDF for the current affairs that will brush up your current affairs very much. Apart from this, we provide you with the topic wise current affairs, topics such as apps and web portals, important days, books and authors. Then comes your sports, then comes your obituary, national affairs, international affairs, sports. These all topics are covered by us on our YouTube channel, which you can go and check it out also. Very important this section, because we provide you with the PDFs also with them that helps you to revise through a particular order, and it is very helpful to you, so you should definitely check it out. Then apart from it, we provide you questions regarding your particular exams also, such as bank, related to your banking. We provide you questions, we provide you PDF, we provide you material that will help you to revise those topics, those important topics. So very important. All right, so I definitely recommend you to check our app and do revise and to purchase the courses, because they will be very helpful to you. These, I strongly recommend you to use our app as well as website, and the quiz provided on the app is very helpful to you on the daily basis, and our monthly study material for your exams will do wonders. So do watch the video for the revision purposes. They are very helpful, and if you use my code Vikas10, straight away you will be getting an additional 10% discount on the purchase you made using the application. So additional discount for you students just from my side. It is a happy hour sale, you can say, 10% discount using Vikas10. So friends, let's start with the session now. तो चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा कि हमारा उस एक्सरसाइज का नेम बताओ जो कि लॉन्च की गई बाय द साउदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी, राजस्थान एंड गुजरात में। कहाँ पे लोकेशन क्या रहेगी? गुजरात और राजस्थान। क्या रहेगा एक्सरसाइज का नाम जो कि लॉन्च की गई वहां पे? वो है दक्षिण शक्ति। थोड़ा सा गला खराब है तो स्टूडेंट्स अवॉइड करना थोड़ी सी आज के लिए। तो दक्षिण शक्ति उस एक्सरसाइज का नेम रहेगा जो कि राजस्थान और गुजरात में हुई थी। साउदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी के द्वारा ये मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च की गई। एक और याद रखना, सागर शक्ति। अगर पूछा जाए सागर शक्ति किस एक्सरसाइज का पार्ट है, तो वो दक्षिण शक्ति का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट, उस एक्सरसाइज एक होती है दोस्ती एक्सरसाइज। दोस्ती एक्सरसाइज में जो दोस्त हो, तो दोस्त कहाँ पे होते हैं आपके? इंडियन ओशन रीजन में, IOR में। तो IOR के रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका,
इन तीनों के द्वारा मिलकर एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है दोस्ती टू, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? इंडियन ओशन रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया, मालदीव दे दिया, इंडिया दे दिया, और पूछा कि तीसरी कंट्री कौन सी है, तो तीसरी आपकी श्रीलंका हो गई। फिर पूछा कि कौन सा एडिशन था ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती का, तो ये दोस्ती का कौन सा एडिशन था? 15वां एक्सरसाइज था, 15वां एडिशन था। तो करेक्ट ऑप्शन 15वां एडिशन था और श्रीलंका। सेम चीज 15वां एडिशन दोस्ती एक्सरसाइज का, मालदीव, इंडिया, श्रीलंका के बीच में। और हाँ, एक चीज और, ये हुई कहाँ पे थी? मालदीव में कंडक्ट कराई गई थी लोकेशन, इंडियन ओशन रीजन की सेफ्टी के लिए। ऑलराइट, चलो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट किया इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बाय डैश फॉर इन द फिस्कल ईयर 2022। 2022 के फिस्कल ईयर के लिए इंडिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया है, क्या प्रोजेक्शन किया वो बताइए। कितनी प्रोजेक्ट किया उन्होंने? 9.3 से 9.6% की जीडीपी ग्रोथ उन्होंने प्रोजेक्ट की है इंडिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एयर इंडिया रेडियो एंड डैश किस ऑर्गेनाइजेशन ने एबीयू यूनेस्को अवार्ड को जीता टुगेदर फॉर पीस मीडिया अवार्ड 2021 के लिए? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? इंडियन ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन के द्वारा। ये कहाँ पे इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया? कुआलालंपुर, मलेशिया में इनको अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन, वो पहले इंडियन कौन बने जिनको नाइटहुड ऑफ पार्टे गुल्फाओ इन फ्लोरेंस इटली अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन बने वो? एसके सोहन रॉय को सम्मानित करा गया। पहले इंडियन बने, ये काफी इंपॉर्टेंट, ये भी रखना याद। नेक्स्ट, निकोल सिवाका, इनको नॉमिनेट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के? किस कंट्री के इनको प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है? बताइए जरा, ये करे गए हैं अपॉइंट किसके लिए? रोमानिया के लिए। नेक्स्ट, किस सिटी की या किस स्टेट की मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा पहला प्रोटोटाइप ऑफ एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड रोलिंग स्टॉक ड्राइवर ट्रेनिंग सिस्टम को लाया गया? वो कौन सी स्टेट या सिटी रहेगी? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा उसको लाया गया। नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाइड की जो यूनिफॉर्म जीएसटी रेट था 12% ऑन मैनमेड फाइबर, जो एमएमएफ कहते हैं, एमएमएफ यान पे, एमएमएफ फैब्रिक्स के, वो 1 जनवरी 2022 से इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि व्हेन वाज जीएसटी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना 1 जुलाई 2017 को ये लागू हो गया था, इफेक्ट में आ गया था आपका जीएसटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि जीएसटी कब लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 को। RBI warned some cooperative banks for violating the Bank Regulation Act using bank in their names. Who is the cooperative minister of India? कौन है cooperative minister इंडिया के? उनका नाम बताइए जरा। अमित शाह। और होम मिनिस्टर भी कौन है? अमित शाह। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने कोलैब किया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के साथ, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के साथ, ताकि इंप्लीमेंट की जा सके एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट इन एमएसएमई सेक्टर। एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए किन के द्वारा इनका करा गया? नाम बताइए उस कंपनी का, क्या नाम रहेगा कंपनी का? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट, अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लोन दिया गया $250 मिलियन का, ताकि एजुकेशन क्वालिटी ऑफ स्कूल्स को इंप्रूव की जा सके आंगनवाड़ी वर्कर्स की आंध्र प्रदेश में? तो आंध्र प्रदेश में किन को दिया, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया लोन? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? वॉशिंगटन डीसी में। यूनेस्को का कहाँ पे होता है? पेरिस में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है? ग्लैंड्स में। WWF का ग्लैंड्स कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एक $300 मिलियन का लोन एग्रीमेंट इंडिया के साथ, ताकि उनकी इंडिया की हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया जा सके अर्बन एरियाज में? किन के द्वारा साइन किया गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा साइन किया गया। उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने HDFC बैंक के साथ पार्टनर किया ताकि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया जा सके। क्या नाम रहेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक का? वो है आपका इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने टाई अप किया HDFC बैंक के साथ ताकि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स को लाया जा सके मार्केट में।
किस कंपनी ने टॉप किया, विच कंपनी टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स ऑफ 2021 एंड इनको नेम किया गया एज द वर्ल्ड्स मोस्ट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के का दर्जा भी दिया गया, तो वो है जेपी मॉर्गन चेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी कंपनी है ये, याद रखना। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक मिशन लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। ये मिशन क्या है कि जैसे मान लो ये अर्थ है और ये कोई और प्लेनेट है और यहाँ पे कोई एस्ट्रॉयड घूम रहा है इसके चारों तरफ, ठीक है, ये उस एस्ट्रॉयड की ऑर्बिट है, ये वो एस्ट्रॉयड है। तो अब क्या करेगा, नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम डार्ट है और इसको रॉकेट जो प्रोवाइड कर रहा है वो है स्पेस एक्स, जिस रॉकेट के थ्रू ये मिशन जा रहा है। इनका मिशन क्या है कि ये सेट रॉकेट को यहाँ से लॉन्च करेंगे और इस पे जाके एस्ट्रॉयड पे अटैक कर देंगे, इस एस्ट्रॉयड पे जिसका नाम है डिडीमॉस, ठीक है, ये है डिडीमॉस। अब इस पे जब वो अटैक करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो ऑर्बिट है ना वो हल्की सी चेंज हो जाएगी। ये नोटिस कर लेंगे, ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लॉन्च किया जाता है कि क्या हम अगर किसी सर्टेन एंगल पे जाके इस एस्ट्रॉइड्स को इम्पैक्ट करते हैं, हिट करते हैं, तो क्या इस एस्ट्रॉइड की जो ऑर्बिट है वो चेंज होती है या नहीं। तो अगर ये ऑर्बिट चेंज होती है तो ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड ये दर्शाता है कि आने वाले फ्यूचर पे अगर कोई एस्ट्रॉयड आके अर्थ पे एक पॉसिबल अटैक करता है, क्योंकि हमें पता है जो डायनासोर्स का खात्मा हुआ था, जो उनका एक्सटिंक्शन था, वो एक एस्ट्रॉयड की वजह से था। तो अगर कोई फ्यूचर में हमें ऐसे कोई अगर सिनेरियो देखने को मिलता है तो क्या हम उस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट के तौर पर रहेगा। तो पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नासा के द्वारा, याद रखना। और एस्ट्रॉयड का नाम डिडीमॉस और जो सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट जाएगा उसका नाम क्या रहेगा, उस प्रोजेक्ट का मिशन का नाम डार्ट। नेक्स्ट, वो पूछ रहे हैं कि जो फास्टेस्ट रिकॉर्ड होल्डर की बात की जाएगी, हाफ सेंचुरी की, फुल सेंचुरी और 150 रन की वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किन के द्वारा सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए गए, वो है एबीडी विलर्स। और एबीडी विलर्स की बात करें तो किस कंट्री के लिए खेलते हैं ये, साउथ अफ्रीका। अभी साउथ अफ्रीका की बात कर ही रहे हैं तो साउथ अफ्रीका का आपको पता होगा एक नया वायरस आ रखा है इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन क्या है, ये एक ग्रीक लेटर होता है जिसका नेमिंग की जाती है कोरोना के लिए। एंड ये क्या है, कोरोना का नया वेरिएंट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी कंसर्न फैला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस कंपनी ने रिसेंटली ट्रोपोगो के साथ टाई अप किया ताकि ड्रोन इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके, उस कंपनी का नाम बताइए। तो कौन सी मैनेज कंपनी रहेगी यहाँ पे, पढ़िए ज़रा, बताइए क्या रहेगा उस कंपनी का नाम, इंश्योरेंस कंपनी का, जो कि ड्रोन के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। अब बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट, किस कंपनी के द्वारा अभी एक को ब्रांडेड मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड अलॉन्ग विद वन कार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया इन टू प्रोवाइड बेस्ट इन क्लास क्रेडिट कार्ड टू कस्टमर्स, बॉब फाइनेंस सॉल्यूशन लिमिटेड ये प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, किन्होंने रीअपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत को, किन्होंने किया, क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत, उनका नाम बताओ पहले तो, ये क्वेश्चन है आपका। क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत का क्या नाम रहेगा, वो है शेख मैशल अल अहमद अल सबा, ये रहेंगे क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत। इन्होंने रीअपॉइंट किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत जो कि हैं शाब अल खैद अल शबा, ठीक है। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी और विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी जिसने सक्सेसफुली डेवलप किया और टेस्ट फायर किया एक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जिसका नाम रखा गया धावा-1। धावा-1 किसके द्वारा टेस्ट फायर किया गया और बनाया गया, स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा। एंड ये जो स्काईरूट एरोस्पेस कहाँ पे लोकेटेड कंपनी है, कहाँ का स्टार्टअप है, तो ये हैदराबाद का स्टार्टअप रहेगा। नेम द गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो कि रिसेंटली कमीशन किया गया था इनटू इंडियन नेवी एट द नेवल डॉकयार्ड मुंबई, क्या नाम रहेगा उसका, आईएनएस विशाखापट्टनम। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन कब ऑब्जर्व किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, 25 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी एक थीम याद रखना, ठीक है। किसकी थीम है ये, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन की। और जो थीम रहेगी, थीम क्या है, ऑरेंज the world and violence against women now. So orange the world and end women violence against the women now, ये थीम रहेगी आपकी इंटरनेशनल डे
ऑफ द फॉर द वायलेंस ऑफ आई रिपीट, ये थीम रहेगी आपके 25 नवंबर की, जो ऑब्जर्व किया जाता है हमें इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। कई बार तो बोलते बोलते आप एकदम स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। नेक्स्ट, which organization signed a line of agreement with the Department of Water Resources to develop water policy sustainable water conservation in Odisha? कहाँ पर? ओडिशा में। किस लिए? वाटर पॉलिसी सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन के लिए, मतलब वाटर कंजर्वेशन के लिए ओडिशा में किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया? तो किसके द्वारा किया गया? यूनिसेफ के द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया। ठीक है, अगर मैं पूछूं वाटर कंजर्वेशन किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर आता है, तो याद रखना ये 6ठे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर आता है वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट, लचित दिवस। लचित दिवस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लचित बोराफुकन, ये वहाँ की एक आइडल रहे हैं जिसके सम्मान के लिए ये लचित दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे लचित दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, किस लोकेशन पे? तो असम में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, असम क्या ही होता है? बिहू। ठीक है, बिहू के साथ साथ बताओ जगोई कहाँ पर, किससे लोकेटेड है? मणिपुर से जगोई। फिर अगर मैं पूछूं चेरा, चेरा या फिर बैम्बू डांस, ये दोनों कहाँ के हैं? मिजोरम के। मिजोरम में एक और ट्राइब होती है लोसाई ट्राइब। ठीक है, ये लोसाई ट्राइब कहाँ पे लोकेटेड है? मिजोरम में। चेहरा बैम्बू डांस कहाँ का है? मिजोरम का। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिवर सिटीज अलायंस को लॉन्च किया फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स। पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने ये रिवर सिटीज अलायंस को लॉन्च किया? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने मिलकर आपका रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया। अगर पूछ ले कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया फॉर विच एयरपोर्ट, जिसको बोला जा रहा है इंडिया का पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट। इंडिया का पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट, ये भी पूछ लेगा कि कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में, तो उत्तर प्रदेश में। उसका नाम क्या रहेगा? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट एवर अराबल फेस्टिवल टू प्रमोट टूरिज्म? अराबल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? कुलगाम, जम्मू एंड कश्मीर में। याद रखना, अराबल जो हब का होता है ना, ये एक फॉल होता है, अराबल फॉल। इसी फॉल को नायग्रा फॉल ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। नायग्रा फॉल है कहाँ पर? कनाडा में है। नेक्स्ट, इंडिया गॉट इलेक्टेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को फॉर कितने टर्म के लिए? कितने टर्म के लिए इंडिया को एक इलेक्ट किया गया फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को? टर्म पूछा गया आपसे, टाइम पीरियड और ईयर भी बता दो, किस ईयर से लेके किस ईयर तक? 4 साल के लिए, और 2021 से लेके 2025 तक। किस बैंक ने इंडिया का पहला क्रेडिट कार्ड फ्रॉम रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक टू सपोर्ट इट्स ग्लोबल कम्युनिटीज टू सस्टेनेबिलिटी एंड नेट जीरो बाय 2030? तो कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहा है जो कि रिसाइकल्ड पीवीसी से, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी की फुल फॉर्म होती है, प्लास्टिक की फॉर्म होती है, वो प्रोवाइड करेगा? तो HSBC इंडिया ये आपका रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक के क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, विच कंट्री कंडक्टेड अ फायर टेस्ट ऑफ द शाहीन 1A सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल? ये किसकी है शाहीन 1A? पाकिस्तान की है शाहीन 1A। नेशनल मिल्क डे इज कमेमोरेटेड एवरी ईयर इंडिया ऑन 26 ऑफ नवंबर। किन की बर्थ एनिवर्सरी मार्क करते हैं? तो आपको याद होगा एक टर्म होती है व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? वर्गीस कुरियन से। और व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड होता है आपका? मिल्क से रिलेटेड होता है। तो नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को आपकी एनिवर्सरी होती है वर्गीस कुरियन की। ठीक है, और इनको ही फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, और व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है। नेक्स्ट, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ पर लोकेटेड है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गुजरात में लोकेटेड है। मैग्नस कार्लसन ये वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं 2013 से लेकर नवंबर 2021 तक, मतलब ये 7-8 साल तक अभी तक लगातार वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर बने रहे हैं मैग्नस कार्लसन। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं?
नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की है कितने मेंबर की पैनल कमेटी टू ओवरव्यू सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या, आपका जो नया पार्लियामेंट बन रहा है उसको सेंट्रल विस्टा नाम दिया गया है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए एक नई कमेटी डेवलप की गई थी 2019 में, अंडर विच मिनिस्ट्री, ये भी पूछा गया, और कितने मेंबर की वो कमेटी थी। तो याद रखना वो 5 मेंबर की कमेटी थी और अंडर किसकी, कौन सी मिनिस्ट्री के थे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक वाइजर नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। वाइजर क्या है, वाइजर की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये है वीमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। मतलब वीमेन की इन्वॉल्वमेंट के लिए साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च फील्ड में या साइंस डेवलपमेंट फील्ड में, रिसर्च फील्ड में किस कंट्री के साथ मिलकर इंडिया ने ये वाइजर प्रोग्राम को लॉन्च किया। तो याद रखना जर्मनी अलॉन्ग विद इंडिया का ये प्रोग्राम रहेगा वाइजर, और इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वीमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। आ गया ये क्वेश्चन, ओमिक्रॉन किस कंट्री के द्वारा कहाँ पाया गया सबसे पहले। ओमिक्रॉन ये पाया गया साउथ अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन पाया गया, इसकी नेमिंग की गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नेमिंग की गई किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये आइडेंटिफाई किया गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कोरोना वायरस की जो नेमिंग होती है कौन करता है, नाम बताओ ऑर्गेनाइजेशन का, कौन नेम करता है कोरोना वायरस को, ऑर्गेनाइजेशन का नेम पूछा गया आपसे, सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। यही करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही नेमिंग करता है किसकी, आपकी कोरोना वायरसेस की। ठीक है, अब ओमिक्रॉन जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको कि ये कौन क्या होते हैं, ये ग्रीक वर्ड्स होते हैं, ग्रीक लेटर्स होते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा, म्यू, ओमिक्रॉन, जी, ये सारे क्या होते हैं, आपके ग्रीक लेटर होते हैं, और इनके बेसिस पे नेमिंग की जा रही है कोरोना वायरस के WHO के द्वारा। ये फिर क्वेश्चंस रिपीटेड हैं आपके। एक चीज और याद रखना इसकी, ये इसका साइंटिफिक नेम है B11529 ओमिक्रॉन का। नेक्स्ट, अभी एक्सिम बैंक के द्वारा लोन दिया गया $100 मिलियन का टू 7 कंपनीज फॉर द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन की डेवलपमेंट के लिए इंडिया की 60 डोमेस्टिक कंपनीज को $100 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया का पहला मेडिसिन डिलीवरी ई-विटॉल ड्रोन एक्विला X2 को डिलीवर किया गया, किस लोकेशन में, मतलब ड्रोन से वही मेडिसिन डिलीवरी की गई, कहां पर, किस लोकेशन में, ये पहली बार हुआ, मेघालय में। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली डॉक्टर सूर्य प्रकाश के द्वारा एक बुक को ऑथर किया गया जिसका नाम रहेगा डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। पूछा जा रहा है किन के द्वारा इस बुक को रिलीज करा गया, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू के द्वारा डॉक्टर सूर्य प्रकाश की डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस बुक को रिलीज किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट के कितने सेशंस होते हैं एक साल में। तो याद रखना 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के। सबसे पहला होता है बजट, मॉनसून और विंटर सेशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, वो पहली कौन सी सिटी बनी इंडिया की जिसने रोपवे सर्विस स्टार्ट की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट। स्टेट का नाम बताओ और सिटी का नाम। स्टेट का नाम हो गया उत्तर प्रदेश और सिटी हो गई आपकी वाराणसी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, जिन्होंने ये इंडिया की पहली रोपवे सर्विस प्रोवाइड की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज कहाँ पे बना है 141 मीटर लंबा, कौन सी रिवर पे बना है ये भी बता दो। इजाई रिवर पे बना है, और इजाई रिवर कहाँ पे रहेगी आपकी, मिजोरम या मणिपुर, जल्दी बताइए, इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। कहाँ पर बनेगी आपकी इजाई रिवर, कहाँ से फ्लो करती है, मणिपुर से फ्लो करती है। तो आपका वर्ल्ड का टॉलेस्ट पियर ब्रिज जो कि 141 मीटर्स लंबा है कहाँ से फ्लो करेगा, कहाँ पे बना है, मिजोरम, मणिपुर में। मैं भी कंफ्यूज हो गया। नेक्स्ट, विच बैंक साइंड अ कोल्ड एंडेड एग्रीमेंट विद कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड टू प्रोवाइड लोन फॉर MSME को लोन प्रोवाइड करने के लिए किस बैंक ने टाई अप किया कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के साथ, वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस कंपनी ने लॉन्च किया ट्रांजिट कार्ड टू एनेबल द यूजर्स टू हैंडल वन सिंगल कार्ड फॉर ऑल ट्रांजैक्शन। सभी ट्रांजैक्शन के लिए एक सिंगल कार्ड के लिए ट्रांजिट कार्ड नाम दिया गया, और किस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। वो हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द
CBIC जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम है, इनके चेयरमैन किन को अपॉइंट किया गया, जल्दी बताओ। वो है विवेक जौहरी जी। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर किन को अपॉइंट किया गया, पीटर फियाला को। आरबीआई ने अभी अप्रूवल दिया टू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर इंक्रीजिंग इट्स स्टेक्स इन डैश अप टू 9.99%। आरबीआई ने एलआईसी को अप्रूवल दिया कि वो कोटक महिंद्रा बैंक में अपना स्टेक बढ़ा दें बाय अप टू 9.99%। Hello friends, through our recent general aware section analysis, we have identified that the news related to mega events is finding more weightage in the competitive exams. In order to cover related news to mega events such as Olympics, national awards, cabinet appointments, all of which contain heavy information, we have chosen a different way to convey that information using interactive infographics. Here is an example of interactive infographics. Using this, you can choose to study various information just from the single PDF. If you want to talk about the medal tally of Tokyo Olympic Games, just by clicking on the image of medals, you will be able to see the information related to medals. Now, if you want to study about any of the players mentioned here, just by clicking on the image of that particular player, you will be getting the information related to that particular player. Now, you will be provided with two types of PDFs. One is your desktop version and second is your mobile version. As the name suggests, desktop version is for both PCs, laptops, and your mobile version is basically for the mobile phones and tablets. In order to use your desktop version in mobile phone, you can use the software of WAPS application in your Google Play, and you can access the desktop version of the file in the phones also. So friends, this format of presentation will help you to remember all the valuable information in an easy manner by connecting information to the related images. Our team has worked immensely hard to bring this to you, and so please do share your valuable suggestions and feedback through comments, as it will boost us to create further such initiatives. Thank you. So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel or if you are new to our channel, then do subscribe because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862 and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price, and that will help you to boost your preparation.